کتنے جو خوش ہیں اپنے ہاتھوں اٹھائیں گے پلیز. جو خوش ہے آئیں خدا کے جلال کو زوردار تعریف کیجیے. ہم نے خوب جو ہے وہ پرستش کے وسیلہ سے حمد و ثنا کے وسیلہ سے بیٹھ پائے. آمین آمین. میں چاہوں گا کہ پیچھے جو جوان بیٹھے ہیں پیچھے آگے آ جائیں پلیز. دونوں نوجوان آگے آ جائیں. ہم کی شکرگزاری کرتے ہیں. ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو جو ہے جاری رکھیں گے. ٹاپک یاد ہے کسی کو؟ ٹاپک یاد ہے جی؟ Truth will set you free. The truth will set you free. Amen. علیشہ بیٹا تھوڑا سا پلیز یہ کم کر دو. نمبر 4. خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے بک آف جان چیپٹر 8 ورس 32. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. بک آف جان چیپٹر 8 ورس 32. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. آپ اس ورڈ سے بخوبی واقف ہیں چونکہ آج 3rd ایپیسوڈ اسی ٹائٹل کے حوالے سے ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کر رہی. خداوند کے پاک کلام کے اس پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آمین کی آواز کا آمین. پریز گاڈ. میرے عزیزو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسے بولیے گاڈ بلیس یو. God bless you. جو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے یا بھائی دوسرے سے گاڈ بلیس یو بولیں اور میرے ساتھ بولیے گا اے خداوند اے خداوند مجھے سننے والے کان مجھے سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل اور قبول کرنے والا دل عطا فرما. عطا فرما. آمین. آمین. میرے عزیزو یہ ٹاپک جس کی آج ہم 3rd ایپیسوڈ جو ہے وہ سننے کو ہم جاننے کو ہے. جس میں 2nd ایپیسوڈ کو جب جس کور کروں گا ریکیپ کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میرے عزیزو ہم ملک عراق کے متعلق جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں سے جان رہے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ عراق کی جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ کیا اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ یہ جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں یہ ٹاپک جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ خوشخبری کا میسج نہیں ہے, یہ اسٹڈی ہے اور اسٹڈی کے ریفرنس سے جو ہے ہم جان رہے ہیں کہ پاس کے اندر کیا ہوا, پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے اور آگے فیوچر میں جو ہے وہ کیا ہوگا. آمین. آمین. سلاس جب ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا تو خداوند کے پاک کلام عراق جسے ہم پریزنٹ نیم جو ہے وہ بیبیلون یا بابل بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے بائبل کے اندر, اور پریزنٹ اس کا جو نام ہے وہ ہے عراق. آمین. آمین. بائبل کے اندر ہمیں بیبیلون کے نام سے یا بابل کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اس کا فرسٹ نام میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, کسی کو یاد ہے؟ سگا. ملک سنار. آمین. جس کا جو پہلا نام تھا اس سے پہلے کہ بیبیلون کے نام سے جانا جاتا ہے عراق, اس کا جو سب سے پہلا نام تھا. علیشہ تھوڑا سا والیوم اور پلیز کم کر دو, مین والیوم کم کر دو. عراق کا جو سب سے پہلا نام تھا وہ تھا سنار. ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا تھا بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس 1 and 2, وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے ملک سنار کا. پھر اس کا نام جو ہے وہ بابل یا بیبلون جو ہے وہ رکھ دیا گیا, اور آج کے ٹائم کے اندر ہم اسے پریزنٹ عراق کے نام سے جانتے ہیں.
So according to word of God, हमने खुदा उनके पाक कलाम में से देखा था कि बागे अदन जो है वो भी इसी लैंड पर, इसी सरजमीन पर था। आमीन। जिसे 4 रिवर जो है या 4 नदियां जो हैं वो क्या करती थी? 4 नदियां उसे शराब करती थी। आमीन। और वो 4 नदियों का जिक्र हमने देखा था बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर। मैं चाहूंगा भाई प्लीज आप पिक्चर्स यहाँ पे हैं, वो प्लीज दिखाइएगा। पैदाइश की किताब के अंदर मैं चाहूंगा कह रहा अगर आप प्लीज निकालो बुक ऑफ जेनेसिस। ये 4 नदियों का आपको जिक्र मिलता है। 4 नदियां, ये पहली नदी, ये 2 पिक्स हैं, ये जरा प्लीज आप देखिएगा, पिक 1 एंड पिक 2। पहली नदी सेकंड चैप्टर के अंदर आपको इसका जिक्र मिलता है। पहली नदी कौन सी थी जी? फिशोन या फैसोन। आमीन। सो प्लीज दूसरी साथ इसी के साथ 1.2 दिस इज, ये पहली नहीं है, 1.2 है, उस पिक्चर के ऊपर लिखा होगा जी 1.2। हाँ जी 1.2। इसके मतलब क्या लिखा है इस नदी के मतलब? वहां पर चोखा सोना है। आमीन। तो इस नदी के मतलब हम देख सकते हैं वहां पर संगे सुलवानी और चोखा सोना जो है वहां पर मौजूद था, जो बाग अदन को या ईडन को जो है वो सैराब करता था। आमीन। इसी तरह से दूसरी नदी या सेकंड रिवर हम देखेंगे 2.1 जी प्लीज 2.1 इसे प्लीज बड़ा कर दीजिएगा अगर पॉसिबल। इस नदी का क्या नाम मैंने आपको बताया हुआ है जी? जेहोम। आमीन। सो ये नदी जो है, ये 2 पहली नदियां जो है हमें मुल्क के टर्की के अंदर इन द प्रेजेंट टाइम, आपको टर्की के अंदर इन पास ये रिवर जो है ये आपको इराक के अंदर मिलते थे। लेकिन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जिस तरह के आज के टाइम के अंदर हम इसराइल को देखते हैं, तो इसराइल जो है जैसे जैसे वो कमजोर मुल्कों के साथ जंग कर रहा है या वॉर करता है, तो उनकी बाउंड्रीज को क्या करता जा रहा है? वो कैप्चर करता जा रहा है, वो लेता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट के अंदर हम देखते हैं, सीरिया के अंदर देखते हैं, लेबनान के अंदर देखते हैं, वो अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करता जा रहा है। इसी तरह से जब इराक कमजोर हुआ तो टर्की ने जो है वो उसकी बाउंड्रीज को जो है या उसकी लैंड को जो है वो कैप्चर किया। सो ये पहली 2 नदियां जो हैं वो आपको टर्की के अंदर मिलती हैं। आमीन। इसी तरह से 3.1 प्लीज दिखाइएगा। तीसरी नदी जी दजला के अंदर आपको मिलती है, जो अभी प्रेजेंट सीरिया में जो है वो मौजूद है। ये पार्ट ऑफ इराक था, लेकिन सीरिया ने, जब सीरिया पावर में था तो सीरिया ने उस लैंड को कैप्चर किया। और अभी ये 3rd रिवर जो है या ये नदी जो है वो आपको सीरिया के अंदर जो है वो मिलती है। इसी तरह से 3.2 प्लीज। ये 2 पिक्चर जो है ये मैप के अंदर मैंने लिया है ऐसे, ताकि आप इसे और आसानी से समझ सकें। जी 4th रिवर 4.1। चौथी नदी ये इसका देखिएगा, ये कुछ आपको जो है आपको इसकी पिक्स मिलेगी 2021 के अंदर, 23 के अंदर, और अब एक पिक आपको मिलेगी इस नदी की प्रेजेंट। चौथे रिवर का क्या नाम है? फरात। आमीन। सो अभी इस नदी की या इस रिवर की ये सिचुएशन है। 21 के अंदर आप देखें, 23 के अंदर आप देखें, और प्रेजेंट जो है वो आप देखें। इसी के अंदर प्लीज सेकंड पार्ट दिखाइएगा। ये भी ये पिक जो है ये ली गई है मीडिया की, आप डेली न्यूज में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चूंकि नेट से डाउनलोड की है ये सारी पिक। सो ये 4 रिवर जो थे बागे अदन को क्या करते थे? शराब करते थे। हमने खुदाओं के पाक कलाम में से देखा, चूंकि इंसान या आदम के डिसओबीडियंस के बायस, आदम के गुनाह के बायस पाक कलाम में बताता है कि जमीन जो है वो क्या हो गई? लानती हो गई। आमीन। इसलिए खुदा ने क्या किया, क्योंकि कलाम हमें जो है वो उस बात की प्रॉपर जो है वो टाइम फ्रेम नहीं देता, लेकिन कलाम हमें बताता है कि खुदा ने क्या किया। खुदा ने बागे अदन से जब आदम और हवा को निकाला
تو وہاں پر خدا نے کیا کیا؟ آگ شعلہ زن آگ کی تلواریں اور کروبین فرشتوں کا وہاں پر کیا کیا؟ پہرا بٹھا دیا. آمین. لیکن آج کے ٹائم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائم کے اندر باغ عدن وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ باغ عدن خداوند نے کیا کیا ہے؟ اسے اٹھا لیا گیا ہے عراق میں سے. سیم اسی طرح سے جیسے میں آپ کو ایگزامپل دی تھی آرک آف دا کونیننٹ، عہد کے صندوق کے متعلق، کہ آج لوگ عہد کے صندوق کے متعلق جو ہے تحقیق کر رہے ہیں، لوگ جو ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جسے ہمارے مسلم بہن بھائی تابوت سکینہ یا ہم اسے اردو کے اندر عہد کا صندوق یا انگلش کے اندر ہم اسے آرک آف دا کونیننٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. اب باغ عدن جو ہے وہ کس وجہ سے اٹھایا گیا؟ آدم کی لعنت کے باعث. ایمین. چونکہ زمین جب آدم نے ڈس اوبے کیا تو زمین پر خدا جو ہے وہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ زمین آدم کی اس ڈس اوبیڈینس کے باعث کیا ہوئی؟ لعنتی ٹھہری. اسی طرح سے عراق ہی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو جب کال کیا، خدا نے ابراہیم کو بلایا تو he was in that time he was in Iraq. آپ ار سٹی کے نام سے واقف ہیں. ار سٹی جو ہے وہ آپ کو عراق کے اندر ملتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس 27 اور 28 کے اندر ملتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت. اسی طرح سے جب دانیل نبی کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں تو دانیل نبی کا ایمان بھی وہیں پر پرکھا گیا، وہیں پر اس کا اظہار ہوا. وہ بیبلون کے اندر they were slavery، وہ غلامی کے اندر تھے. جب اسے کہا جاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، سدرک مصر عبد النجو نے کیا کرنا ہے، بادشاہ کی مورتی کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اول تو ہمارا خدا ہمیں تجھ سے بچانے کی کیا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. آمین. سو عراق کے اندر، بابل کے اندر آپ کو یہ ٹیسٹیمنی جو ہے وہ ملتی ہے دانیل کی. اسی طرح سے ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھا تھا یونا کی بلاہٹ. نینوا شہر جو ہے، نینوا شہر بھی آپ کو عراق کے اندر یا بابل کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، جس کا آج کے ٹائم کے اندر پریزنٹ نام جو ہے وہ موصل کے نام سے، جس کے ماڈرن نیم جو ہے پریزنٹ عراق کے اندر موصل سٹی جو نینوا شہر کا نام ہے، وہ آج آپ کو اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. آمین. اب آج ہم آگے جو دیکھیں گے کہ عراق کی بربادی جو ہے وہ کیوں ہوئی، عراق کو کیوں، کن وجوہات پر جو ہے وہ خدا نے برباد کیا، کیا وجوہات ہیں، what's the reason behind that، کہ کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں کہ خدا نے اس کو تباہ و برباد کیا. آئیں خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے میرے ساتھ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت سے 14 آیت تک. بک آف جینیسس چیپٹر 10 from verse 6 till 14. اگر آپ نے نکال دیا تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. بک آف جینیسس چیپٹر 10 from verse 6 till 14 ہم پڑھیں گے. خدا ان کے پاک کلام لکھا ہے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان، اور بنی کوش یہ ہیں سبا، حویلیہ اور سبتا اور راما اور سبکتیا، اور بنی رمیہ یہ ہیں سبا اور دان، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں، جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا، ملک سنار میں بابل اور ارکاد اور کلنا سے ہوئی. اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوا اور ربوت اور ایر اور کلہ کو، اور نینوا اور کلہ کے درمیان
रसन को जो बड़ा शहर है, और मिस्र से लुदी और अनामी और लहाबी और नफ्तुही और फरतूसी और गलसुही, जिनसे फलस्तीन निकले कफ्तूरी पैदा हुए। आमीन। अब ये किस जनरेशन का जिक्र आ रहा है जी? किस जनरेशन का जिक्र आया है? मैंने शुरू में पढ़ा है, नूह के बेटे हाम का। आमीन। ये नाम जो पढ़े गए काफी डिफिकल्ट है, जो मैंने पढ़े हैं, इन्हें सही से प्रोनाउंस करना, चुके आंखें भी मैंने अभी चेंज की है, नहीं है। तो ये काफी डिफिकल्ट जो है ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी। लेकिन ये सारी जनरेशन जो आपके सामने नाम पढ़े गए, ये नाम जो है ये नूह के बेटे हाम के हैं। और हाम जो है ये पता कौन सी नस्ल है? हाम की नस्ल जो है, या बनी हाम जो है, हाम्स जनरेशन वाज अंडर द कर्स। हाम की नस्ल जो है वो कर्स के अंदर थी। हाम की नस्ल जो है वो लानत के अंदर थी। और अगर आप इसे देखना चाहें तो मेरे साथ देखिएगा, खुदा उनके पाक कलाम ही में से बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 24 till 27। पैदाइश की किताब, उसका नामा बाब, उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 24 till 27। यहां पर लिखा है, जब नूह अपनी मैं के नशा से होश में आया, तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने उससे कहा कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। फिर कहा कि खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो, और कनान सिम का गुलाम हो, और खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। आमीन, आमीन, आमीन। अब ये नस्ल जो है, हाम की नस्ल जो है, ये नस्ल जो है ये कर्ज के अंदर है। ये नस्ल जो है ये लानत के अंदर है। और जब हम खुदावन के पाक कलाम के अंदर देखते हैं तो उसकी सबसे पहली वजह जो अराब या मुल्क सनार जो है, या बेबीलोन जो है, जो कर्ज के अंदर है, या उसकी बर्बादी जो है वो खुदावन की तरफ से तय पाई। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि बाज़ाहिर जो ये है हमें इन तमाम तर कंट्रीज की बर्बादी जो है हमें नजर आती है कि वॉर के अंदर ये है, फिर इनकी करप्शन के बायस जो है वो हमें नजर आती है। लेकिन एक्चुअल में खुदावन का हाथ जो है वो उनके अगेंस्ट है। खुदावन का हाथ जो है वो उनके खिलाफ जो है वो बड़ा हुआ है। और जो पहली सबसे फर्स्ट रीजन हम देखते हैं कि ये जब नस्ल जो है जो कर्ज के अंदर है, जो लानत के अंदर है, जब इन मुल्कों में पहुंची, सबसे पहले कहां पर पहुंची है? कूश में। अब कूश जब आप देखते हैं तो खुदावन के पाक कलाम के अंदर कूश प्रेजेंट आपको जो नाम मिलता है वो सडान के नाम से जाना जाता है, सडान और इथियोपिया। आमीन। आज सूडान के अंदर आप सिचुएशन देख रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कभी न्यूज़ सुनते हैं आप? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सूडान के अंदर? सूडान में वॉर हो रही है। लोगों के पास एक टाइम का खाना भी जो है वो नहीं है। मैं कल अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुन रहा था, तो एक लेडी की न्यूज़ मैंने सुनी, वो बता रही थी कि मैं जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ, लेकिन खुद मेरे लिए कोई डाइट नहीं है, मैं घास खाती हूँ। सूडान के अंदर अभी ये सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन। आज के दौर की आपको बात बता रहा हूं, अगर आप न्यूज़ नहीं सुनते लेकिन मैं सुनता हूं। सूडान के अंदर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो लोगों के पास खाने के लिए है, टोटली वहां पर वॉर चल रही है। और आज से नहीं, कई अरसे से वो जंगो-जदल के अंदर है। इथियोपिया का मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया दोनों एपिसोड के अंदर कि मैंने एक उनकी जो डिस्कवरी चैनल पर उनकी वो जो वीडियो देखी थी
کہ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور لوگ جس طرح سے ہم آٹا جو ہے وہ گوندھ کر روٹی بناتے ہیں، لوگ وہاں پر مٹی گوندھ کر روٹی بناتے ہیں اور اس مٹی کو روٹی کی طرح کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ سیکنڈ جو دیکھتے ہیں، سیکنڈ آپ کو مصر جو ہے وہ ملتا ہے، مصر جو پریزنٹ یا انگلش کے اندر جسے ہم ایجپٹ کہتے ہیں۔ اب اس کا کچھ حصہ جو ہے آپ کو مصر کے اندر پریزنٹ ایجپٹ کے اندر یا مصر کے اندر ملتا ہے، کچھ حصہ آپ کو کوش کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، اور اسی طرح سے جو چوتھا نام ہے وہ کیا ہے؟ فود۔ ایمین۔ فود جو ہے وہ پریزنٹ لیبیا ہے۔ فود کون سی کنٹری ہے پریزنٹ؟ لیبیا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور لیبیا کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کے اندر کیا سچویشن ہے۔ آپ جب یہاں پر دیکھتے ہیں ملک مالٹا کے اندر، آپ کو بہت سارے لیبین جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے چوتھا نام کون سا ہے؟ ملک کنعان، یا انگلش میں جسے ہم کیا بولیں گے؟ CANN، کینان۔ ایمین۔ ملک کنعان، کنعان جو آج کے ٹائم کے اندر میں پریزنٹ ملتا ہے، اس کا نام کوئی جانتا ہے؟ ملک کنعان، پریزنٹ اسرائیل۔ اب یہ چار لینڈ جس کے متعلق آج میں، چونکہ آپ اس پہ بہت سارے نام ہیں، سیریا بھی ہے، چونکہ جو ہم نے ہام کی جنریشن ہم نے دیکھی کہ ہام کی جنریشن کن کن ملکوں کے اندر، کن کن جگہوں کے اندر پہنچی، وہ آپ کو فلسطین بھی آپ کو ملتے ہیں، فلسطین جسے ہم پریزنٹ ٹائم کے اندر کہتے ہیں، اسی طرح سے سیریا بھی آپ کو ملتا ہے۔ سو یہ تمام تر کنٹریز جو میں نے چار کا جس ذکر کرا، تو ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اب یہ چار ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چار ملکوں کے اندر یہ ہام کی نسل پہنچی، یا ان تمام تر جگہوں پر جب ہام کی نسل پہنچی تو یہ نسل کون سی ہے؟ لعنت کے اندر ہے۔ یہ نسل جو ہے یہ قرض کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم آدم کو دیکھتے ہیں تو آدم نے جب خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کی، ڈس اوبیڈینس کی، تو وہاں سے لعنت کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا آدم سے کہتا ہے کہ تو کیا ہوا؟ چونکہ تو نے میری ڈس اوبیڈینس کی، تو نے نافرمانی کی، اس لیے زمین تیرے باعث کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ سو پہلا آدم جسے ہم دیکھتے ہیں، پہلے آدم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو چرچ یاد رکھیے گا، آج بھی جتنے لوگ جو ہیں وہ پہلے آدم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی جتنے لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج بھی وہ لوگ جو ہیں آدم کے ڈی این اے سے جانے جاتے ہیں، وہ قرض کے اندر ہیں، وہ گناہ کے اندر ہیں۔ اس لیے کلام کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ پہلے آدم کے باعث کیا ہوا؟ موت آئی۔ آمین۔ اور اسی طرح سے دوسرے آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کے باعث کیا ہوا؟ انسانوں میں زندگی آئی۔ اور اسی لیے خداوند کا بندہ پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو چیپٹر 5 ورس 17 کے اندر اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ ایمین۔ 17 کے اندر لکھتا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ ایمین۔ ایمین۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے وہ کس میں ہے؟ وہ کس میں ہے؟ جو کوئی شخص خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے، اس کا ڈی این اے جو ہے یا اس کے اندر جو جینز پائے جاتے ہیں وہ آدم کے نافرمانی کے قرض کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے میں نے خدا کے کلام کو بتایا کہ پہلے آدم کے باعث جو ہے وہ انسان کے اندر یا دنیا کے اندر کیا ہوا؟ موت آئی۔ لیکن دوسرا آدم یعنی خداوند یسوع مسیح، اس کے باعث انسانوں میں کیا ہوا؟ زندگی آئی۔ اور اس لیے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے،
आगे खुदावंद का वचन लिखता है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आमीन आमीन आमीन। आमीन। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। कब नहीं हुई? जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आए। आमीन। अब पुरानी चीजें कौन सी हैं? आदम का कर्ज, जो आदम पर लानत हुई, जिसके बायस जमीन जो है वो लानती ठहरी, इसलिए वो कर्ज जो है वो तब खत्म होता है जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। वो कर्ज जो है वो बरकत में तब्दील हो गया। आमीन। उस कर्ज के बायस हम उस कर्ज से, पुरानी लानत से निकलकर नई चीज यानी हमेशा की जिंदगी के अंदर क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं। हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब मुल्क सनार के अंदर कौन सी जनरेशन पहुंची है? मिस्र के अंदर कौन सी जनरेशन पहुंची है? इजिप्ट के अंदर कौन सी जनरेशन पहुंची है? हाम की जनरेशन। मुल्क कनान के अंदर कौन सी जनरेशन पहुंची है? हाम की जनरेशन, जो किसके अंदर है? कर्ज के अंदर है, जो लानत के अंदर है। अब चूंकि ये वहां पर पहुंचे हैं, इसलिए वो तमाम तर लैंड जो है वो इनके बायस क्या है? कर्ज के अंदर है, गुनाह के अंदर है, लानत के अंदर है। मेरे अजीजों, अब जब ये इराक में पहुंचे, जब मुल्क सनार में पहुंचे, तो इन्होंने किया क्या? आइए मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 2 till 4। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक। अगर आपने निकाल लिया तो आप आमीन कह सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 2 till 4। भाई जवाब निकाला आपने? ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट में मून चल रहा है। मुझे रोज स्टडी करनी पड़ती है इसकी। रात को मैं 12:30 सोया हूँ, सुबह सुबह उठ के फिर 9:30 बजे तक मैं कर रहा था इसकी प्रेपरेशन। जी आपने निकाले, आप आमीन कह सकते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला। मुल्क सनार यानी इराक, इमाम बेबीलोन। और वो वहां बस गए। ये बस गए का पॉइंट आपने याद रखना है, आगे चलकर हम इसे देखेंगे। लिखा है वो वहां बस गए और उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गाड़े से काम लिया। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परागंदा हो जाएं। आमीन आमीन। अब ये लोग जो हैं ये कहां पर पहुंचे हैं? कर्जशुदा जनरेशन कहां पर पहुंची है? मुल्क सनार के अंदर। आमीन। इराक के अंदर ये पहुंचे हैं। और जब ये यहां पर पहुंचे, अब इनकी आपस में डिस्कशंस हुई है। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि हम क्या करते हैं, अपने लिए एक शहर बनाते हैं। पुरुष भाज बनाएंगे, पहले शहर थे बाप, क्या बनाएंगे? हम एक शहर बनाएंगे। फिर वो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी क्या हो? जिसकी चोटी आसमान तक जाए। और जो चौथा काम किया, पहला काम उन्होंने किया वो उस मुल्क के अंदर बस गए। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक शहर बनाया। तीसरा काम क्या किया? उन्होंने बुर्ज बनाने का प्लान किया कि हम एक बुर्ज बनाते हैं जिसकी चोटी क्या हो? आसमान तक जाए। और चौथा काम क्या किया उन्होंने? यहां पर हमारा क्या हो? नाम हो। आमीन आमीन ने कह दोगे? आमीन। प्रेज गॉड। नाली जगह मैं क्या बोलते नहीं हो तो पता लगता रहेगा। अब जब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, पहला काम बस गए, बसने का हम आगे जाकर देखेंगे।
दूसरा काम इन्होंने क्या किया है, शहर बनाया है। और तीसरा काम क्या किया है, इन्होंने कहा कि हम एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी कहां तक जाए, आसमान तक। कहां तक जाए, आसमान तक। मेरे बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1, तो वहां पर लिखा है, खुदा उनके पाक कलाम के अंदर यशायाह की किताब उसका 66वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। आमीन आमीन। खुदावंद का बंदा यशायाह जो है इस बात को लिखता है। और कौन फरमाता है, कलाम में लिखा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा क्या है, आसमान मेरा क्या है, तख्त है। और इनका क्या प्लान है, ये कर्जशुदा नस्ल का क्या प्लान है कि हम एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी कहां तक जाए, कहां तक जाए, आसमान तक। और आसमान क्या है, आसमान खुदावन का तख्त है। अब मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था कि ये कर्जशुदा लोग हैं, गुनाह के अंदर लोग हैं, ये लानतशुदा नस्ल है, और ये करना क्या चाहते हैं, ये आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। आमीन आमीन। कहां पहुंचना चाहते हैं, आसमान तक। आज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो विदाउट क्राइस्ट, बगैर खुदावन के जो है आसमान तक खुदावन की हजूरी में पहुंचना चाहते हैं। आमीन। आज बहुत सारे ऐसे हैं, आज आप जब आप बहुत सारे लोगों के साथ, डजंट मैटर, हमें जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी ऑल फॉलो द गॉस्पेल वे। हमारी एक्चुअल में जो डेस्टिनेशन है वो खुदावन की हजूरी है। वी हैव द डिफरेंट वेज, रास्ते जो है वो बहुत सारे हैं, सब खुदा को मानते हैं, इट डजंट मैटर, सब ने पहुंचना वही है। अब ये लानतज़दा नस्ल जो है ये क्या कर रही है, ये एक्चुअल रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते से या अपनी सोच से आसमान तक पहुंचना चाहते हैं, खुदावन की हजूरी में पहुंचना चाहते हैं। अब जबकि पाक कलाम के अंदर लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 के अंदर क्या लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 के अंदर लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। आमीन आमीन। एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन है, वो रास्ता है खुदावंद यीशु मसीह, जो फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। अब ये वो नस्ल है जो कर्ज के अंदर है, लेकिन ये यहां पर क्या करना चाहते हैं, एक बुर्ज बनाना चाहते हैं जिसकी चोटी जो है वो कहां पर जाए, आसमान तक जाए। आमीन आमीन आमीन। अब ये हैं तो कर्ज के अंदर, हैं तो गुनाह के अंदर, एक्चुअल रास्ते को तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जाना कहां पर चाहते हैं, आसमान, आसमान पर, खुदावंद की हजूरी में। आमीन। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्चुअल वे को तो छोड़ चुके हैं, उसको तो फॉलो नहीं कर रहे। एक्चुअल वे कौन सा है, एक्चुअल वे कौन सा है, खुदा के साथ, एक्चुअल वे कौन सा है, खुदा के साथ वफादारी, खुदा का बेटा यीशु मसीह। आमीन। एक्चुअल वे कौन सा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, देयर इज नो अदर वे, ओनली द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वही एक रास्ता है जिसे आप फॉलो करके खुदावंद की हजूरी में वापस जा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग डिफरेंट वेज के साथ वहां पर पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा राह जो है वो नहीं है जिसके वसीला से आप वहां तक पहुंच जाएं। इसलिए खुदा उनके पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो क्या हो, हलाक ना हो
हमेशा की जिंदगी पाए। वही राह है, वही हक है और वही जिंदगी है। अगर इंसान खुदावंद की हजूरी में वापस हेवन में जाना चाहता है तो वो अपनी साइंसी टेक्निक के साथ कभी नहीं पहुंच सकता। आज आपको दुनिया के अंदर बहुत सारे साइंसदान मिलते हैं, आमीन, कितने कितने जान रहे हैं इस टाइम, कितने प्लान्स कर रहे हैं साइंसदान, इतने भी पहुंच गई। आपने कुछ बोला मार्स तक क्या प्लान हो रहा है, वो सारे वहां पर जाना चाह रहे हैं एक्चुअल वे को छोड़कर। एक्चुअल वे को छोड़कर हर शख्स जो है वो अपने आप को बड़ा ही हिकमत वाला समझता है, बड़ा दानिशमंद समझता है कि हम वहां तक पहुंच जाएं, बट देयर इज नो अदर वे। कोई दूसरा जो है वो रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह। तो जिसके पास मसीह है उसके पास जिंदगी है, उसके पास रास्ता है, और वही जो है वो आपको बाप तक लेकर जाने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। उसके लिए आप ताली बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। कितने से एनएन काटे थे असली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं डिफरेंट वेज ना। बोल्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बोल्टर पे ना, बोल्टर बैठे हम शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं। जब रोड पर ट्रैफिक हम देखते हैं ना तो कहते यार शॉर्टकट वे भी खींचे चल निकल जाइए, तो प्रवीण यार बस भी जाइए। ऐसे ही लोग करते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने पहला काम क्या किया, उस शहर के अंदर बसे हैं। दूसरा काम क्या किया, वहां पर शहर जो है उसे बनाया। तीसरा काम एक बुर्ज बनाया जिसकी चोटी कहां तक? आसमान तक। और चौथा काम क्या किया है? चोटी किस लिए बना रहे हैं? ताकि उनका नाम हो। आमीन। हम गीत गाते हैं, एक गीत गाते हैं पंजाबी का, वड्डे वड्डे काम करदा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। आमीन। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो फिर उसका एक नाम जो है वो होता है। हर शख्स चाहता है कि मेरा नाम जो है वो जरा जम के आए, चमके, मेरा नाम जो है चमके। आजकल एक करेंसी चली है जो ट्रम्प ने, बिटकॉइन। आमीन। वो चली है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम जो है मैक्सिमम बाय कर सकें। अब ये चूंकि उसका नाम है, उसके पीछे कौन है? ट्रम्प है। आमीन। इसी तरह से हर शख्स जो है वो डिफरेंट काम करता है ताकि वो कहीं ना कहीं जाना जाए। इसी तरह से कोई पुट्ठा भी काम कर लेते हैं, कहता चलो जो मशहूर ना होगा बदनाम भी ना होंगे, कहीं बदनाम वाले काम भी कर लेते हैं। ना होना चाहिए बस। आज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, आज आपको चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसे नाम मिलते हैं। आज बहुत सारे आपको पास्टर्स जो मिलते हैं जो चाहते हैं नवी बदरुआ कटे चलो, मौजे करी चलो, की हो गए पता लगे यार है बंदे को बड़ी बरकत है, बड़ी ब्लेसिंग। सारे नहीं, कुछ आदमी ऐसे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वर्शिपर्स नजर आएंगे, मैनू अगे कीता, मैनू पीछे कीता, मेरा नाम उत्ते कीता, मेरा थल्ले कीता। वो भी अपना नाम चाहता है, पता लगे मैं भी कुछ है वहां। ये मैं आपको आम दुनिया की बात नहीं बता रहा, आम दुनिया की चीजें है ही है नहीं। आपको चर्च के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरा नाम उत्ते होना चाहिए। क्यों कर्नेलियस तबला नहीं, कर्नेलियस ऐसा नहीं सोचता, वैसे जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्योंकि आज चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं साड़ा ना होए। पास्टर्स आपको मिलेंगे, वर्शिपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे चर्च लीडर्स आपको मिलेंगे कि जो पता लगे हाँ ऐ काम है बंदा करता पे चर्च में। मैंने जब खिदमत स्टार्ट की सेमिनरी करने के बाद, तो मेरी कोशिश थी खुदावंद तू मुझे वहां पर लेकर जा जहां पर जरूरत है। जब मैं सेमिनरी करके आया कोरिया से, तो मैंने जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने पहले जो है एक स्पिरिचुअल बैंड जो शुरू किया, गॉड ऑफ मिरेकल्स सिंगिंग मिनिस्ट्री। तो मैंने सिंगिंग बैंड जो शुरू किया
और हम डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस के अंदर जाकर हम जो है वो म्यूजिकल बैंड, हम गॉस्पेल सिंगिंग का बैंड जो है वो हम वो प्रोग्राम अरेंज करते, ताकि उस टाइम के दौरान मैं देखूं कि कहां पर खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता, कहां पर खुदा को जो है वो मेरी जरूरत है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं, मुझे जो है वो वहां पर पहुंचना था जहां पर खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। और मैंने सबसे पहले खिदमत शुरू की बागड़ियां के अंदर, ग्रीन टाउन का आपने एरिया सुना होगा, लाहौर ग्रीन टाउन। बागड़ियां में गया तो बागड़ियां जब मैंने कुछ महीने खिदमत की तो मुझे जो है वो एक एवेंजलिस्ट ने, मैंने कहूंगा उन्हें मैं एवेंजलिस्ट कहूंगा, एवेंजलिस्ट। क्योंकि आजकल ये होता है, कुछ लोग जो हैं वो जो कुछ खादमों के साथ चलते हैं ना, तो जो दुआ बाबा करने लग पे कहते हैं रूल को दसने में क्या अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर लिया। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं, जब खादमीन के साथ चलते हैं पहले तो उनके साथ साथ चलते हैं, बैल चौक के नाल पे फिरते हैं, फिर जब वो कुछ उच्ची दुआ करनी शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं रूल को दसने में कहता है कि उन्हें तो अपनी कदम शुरू कर। उधर क्यों नहीं जा रहे? नहीं पादरी नहीं सही। आमीन। ये बहने शायद पहले दफा बहने इस्तेमाल कर रही, इस दफा तो सही कह रहा हूं। सो ऐसा होता है चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर। मुझे जब उन्होंने इनवाइट किया कि भाई साहब तुसी आकर ना कलाम सुनाना है, असली खिदमत शुरू की थी मिनिस्ट्री, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब वो मुझे लेकर जा रहे हैं अपने चर्च की तरफ जहां पर वो मीटिंग कर रहे थे, भाई साहब गली क्या है, कैथोलिक वो ये कहंदे सी कि गच्चा भी कील लेंदे, इनू कब चढ़ता जे, ये भी अपना ही है, कोई गल नहीं। नहीं है कैथोलिक दा, कहंदे इथों लैके उथों तक कोई बुरी रूह जिहड़ी है ना, बैड स्पिरिट गली च वड़ नहीं सकदी। मैं कहा बड़ी गल है जी। मैं कहा ठीक है सर। ते मैं कहा सर जाके कील लेंदे की फर्क पैंदा सी, वो भी अपने ही ने। क्यों? क्योंकि वो ये जाहिर करना चाहता है कि मैं जो है ये बड़ी तोप हूं, मैं बड़ी चीज हूं। हम जो है वो इस कदर उससे भरे हो कि जब तक यहां पर हम हैं, कोई बैड स्पिरिट जो है ये इस गली में, या कोई बदरू जो है वो इस गली में नहीं आ सकती। लोग अपना नाम चाहते हैं। अब ये भी क्या चाह रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं? अपना नाम। आमीन। असी जाने जाइए दुनिया में चाहे ना टाइम टू मारे करके निकल जाइए, चलो जी पता नहीं लगा कोई आए संत ये कौन कर गया। वो बुर्ज बनाना चाहते हैं जिसकी चोटी कहां तक जाए? आसमान तक जाए। तो जितना चोटी आसमान तक जाएगी, जब आप उसे जाकर देखेंगे। मैं जब हांगकांग में था 97 के अंदर, तो हांगकांग के अंदर अगर आपका शायद एक्सपीरियंस हो तो आपको आसमान देखने के लिए ऐसे तो नहीं जाने का, 90 दर्जे का जो लेवल सेट करना पड़ता है ऊपर को, फिर आपको स्काई नजर आता। अदरवाइज बिल्डिंग्स जो बहुत ऊंची हैं। अब ये भी क्या करना चाह रहे हैं? ये एक बुर्ज बनाना चाहते हैं जिसकी चोटी आसमान तक जाए, ताकि जब उसे लोग देखें तो लोग कहना वाह जी वाह, फलानी जनरेशन यहां पर आई थी तो उन्होंने इस बुर्ज को बनाया, ये चोटी यहां तक पहुंची। अब वो क्या चाह रहे हैं? वो चाहते हैं कि उनका नाम हो। अब चूंकि ये लोग कहां पर हैं? कर्स में हैं। ये जनरेशन जो है कर्स के अंदर है, ये पॉसिबल नहीं। चर्च खुदावंद के पाक कलाम के अंदर याद रखिएगा, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को देखें, पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, वहां पर खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है, इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, और खा उनका जो जमीन के नीचे, खा उनका जो जमीन के नीचे है। आमीन। एक ही नाम है। आमीन। चाहे वो आसमान हो, चाहे वो जमीन हो, या चाहे जमीन के नीचे पाताल हो, एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह।
झुकेगा। आमीन आमीन। अब ये अपना नाम करना चाहते हैं और कुरान बताता है कि जमीन पर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके जो है वो सताइश की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए। आज आप बड़े बड़े खादमों को जब आप देखते हैं तो खुदा के खादम, आप बेनी हिन को देखें तो कभी बेनी हिन ने नहीं कहा टच इन बेनी हिन नेम। कभी सुना है? बेनी हिन ने कभी नहीं किया? वो क्या कहता है? टच इन जीसस नेम। आमेन आमेन। क्योंकि वही नाम है जो इज्जत के लायक है, वही नाम है जो सताइश के लायक है, वही नाम है जो बुजुर्गी के लायक है, क्योंकि बाप ने उसे सर बुलंद किया है। आमीन। अब ये कर्ज के अंदर है, ये लानत के अंदर है, ये अपना नाम चाहते हैं। आमीन। आज साढ़े जी भी कुछ चाहते हैं? कोई है? सारे चाहते हैं। मैं बह जाऊं? अगर ऐसा चाहते हैं तो इट मींस वी आर अंडर द कर्स। अगर आप यीशु नाम से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी स्तुति चाहते हैं, आप अपनी प्रेज चाहते हैं, अगर आप अपने नाम को जश्न महिमा देना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वी आर अंडर द कर्स। क्योंकि यही तो वो कर रहे हैं। एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है जिसके आगे हर एक घुटना जो है वो झुकेगा। आमीन आमीन। समय सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि टॉपिक अभी लंबा है। नेक्स्ट एपिसोड फिर चलेगी।